Let's take a deep breath in. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. आज हमारा आत्मबोध का 23rd सेशन है. It is the concluding session and we are going to take up the verses 67 and 68 and then the conclusion. ये शुरू करने के पहले एक इंटरेस्टिंग बात अब मुझे अलका जी की इतनी अलर्ट फोटो दिख रही है अपने स्क्रीन के ऊपर कि आई वांट टू से समथिंग वेरी स्टिम्युलेटिंग, मेंटल इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन. तो उसकी बात करने के बाद मैं आत्मबोध लेना चाहती हूँ. तो मैं प्रोग्रेसिवली आपको बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ से, मतलब कि एक देखिए, अगर हम अपने आप को एनालाइज करें, थोड़ा सा एक साधक जब अपने अंतर्मुखी थोड़ा हो जाता है तो पहले वो देखता है कि सारा संसार इट इज अ प्ले ऑफ द 5 एलिमेंट्स. आप लोग लिख लें. The first step is that it is a play of the 5 elements. या उसको कह लें कि matter, energy and time and space. This is what is playing with each other. Matter, energy, time and space are playing with each other. This is how a sadhak looks upon the world when he turns a little towards the अपनी दृष्टि को थोड़ा अंतर्मुखी जब वो कर लेता है तब वो ये रियलाइज करता है. सेकंड स्टेप क्या है? that it is just a play of Maya. This is the second step. First step is play of the 5 elements. Second step is a play of Maya. But Maya has no existence apart from Chit. ये हम लोग को मालूम है ना? माया चित तत्व, शिव तत्व के सिवा उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना? So we then are forced to say कि ये तो सब चित विलास है. So the third step is चित विलास. Universe is the play of consciousness. और काश्मीर शैविज्म, आपको बता दूं, काश्मीर शैविज्म जिसने कि हमको विज्ञान भैरव के 112 टेक्निक्स दिए हैं, काश्मीर शैविज्म में माना जाता है कि ये चित्त विलास है. ठीक है? Now the fourth is the play of Shiva. This is the fourth, कि भगवान की सारी लीला है, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं. अब फिफ्थ स्टेप आता है, but can consciousness play? Play implies change. Therefore, it cannot be called Chit or the play of Chit. So it is given another name, which is called, which from here Vedanta starts. You understand? तो यहाँ पर वेदांत उसको कह देता है कि ये चित विवर्त है. It is an appearance in the consciousness. So this becomes the fifth step or
सिक्स्थ स्टेप है कि but everything is pervaded by that consciousness, so it is called चिन्मय. तो चित विवर्त के बाद आता है चिन्मय, which is the sixth step, and the seventh step to which Atma Bodh is taking us today is called चिन्मात्र, सिवा उसके और कुछ नहीं. हाँ, तो एक बार मैं फिर से आपको सीरियल ऑर्डर में बोल देती हूँ. तो पहले प्ले ऑफ द 5 एलिमेंट्स, सेकंड प्ले ऑफ माया, थर्ड प्ले ऑफ चित्त विच इज कॉल्ड चित्त विलास, लेकिन चित्त में कोई प्ले नहीं होता, इसलिए अच्छा. फोर्थ इज प्ले ऑफ शिवा, एंड फिफ्थ इज चित्त विवर्त, and sixth is चिन्मय. सब कुछ pervaded by that Chaitanya, and the seventh is चिन्मात्र, केवल वो ही है और कुछ है ही नहीं. ये जैसे कि गुरुदेव की आंखों में बसा हुआ है. जितने भी एनलाइटन मास्टर्स आज तक हुए हैं, उन सबको यही एक्सपीरियंस हुआ है कि वो ये सारा संसार चिन्ह मात्र है. और इसी को ठोक बजा करके विवेकानंद ने मॉडर्न भाषा में अलग अलग तरहों से कहा है कि ये सब चिन्ह मात्र है. And the goal and purpose of this life is to uncover that chit in this life. You understand? To uncover it, to discover it. So now we are on 67th verse. Hridakasho dito atma. Hridakasho dito atma. Atma bodha. Atma bodha. Bhanustamoya hrit. Bhanustamoya hrit. Bhanustamoya hrit. Bhanustamoya hrit. सर्वव्यापी सर्वधारी. सर्वव्यापी सर्वधारी. भाति भासयते अखिलम. भाति भासयते अखिलम. हाँ. The Atma, the sun of knowledge that rises in the heart space, destroys the darkness of ignorance, pervades and sustains all, shines by itself, and also makes everything shine. ये है इसका literal meaning. अब देखिए, whether the sea is stormy or calm, the sun always shines on this. अब आप इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में समझिए. Whether we are calm or whether we are in turmoil, we are depressed or agitated, the awareness always shines on us. There is never a moment when that awareness leaves us. कि भाई अभी तो मैं बहुत खराब मूड में हूँ, इसका मतलब कि वो आत्म तत्व को मैंने छोड़ दिया है. No, that आत्म तत्व is ever with you. It is illuminating whatever you are going through. है ना? In the sky of our heart, the sun of knowledge rises. ये आत्मबोध करने का ये असर होता है, that in the space of our heart, the sun of knowledge, कि I am not this body, and I am that tattva which I can feel. As soon as I close my eyes, I can feel that. I am that. That is my reality. This knowledge rises. And with the rising of this knowledge, all darkness is destroyed.
And what is the darkness of ignorance? May I ask any one of you to answer? What is the darkness of ignorance? Under which spell are we? Agyan. अज्ञान is हाँ, इसको और Maya. clarify. Maya. इसको जो मैं अपने आप को एक पर्सन समझता हूँ, केवल वो ही डार्कनेस है. Body consciousness. Body mind consciousness, BMI. Person consists of body, mind, personality, identifications. ये जो ignorance है, ये है ignorance, ये है माया. इसके स्पेल के अंदर हम हैं. समझ गए कि नहीं? That which is illuminating and supporting everything, and the person loses all the wrong identities of the person. अभी ये ज्ञान आने के बाद हम कैसे वो पर्सन रह सकते हैं? मैंने तो देख लिया, मैंने तो जान लिया कि मैं सबके ही बिहाइंड में हूँ. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मेरे द्वारा सपोर्टेड नहीं है. This is like the result of this knowledge. This is like the result of this knowledge. ये जो आत्मज्ञान का रिजल्ट है, फल है, वो ये है कि मैं जान जाता हूँ कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो मैंने कितनी स्ट्रांगली मान रखा था. नींद में भी कोई बोलता है, मैं सो रही होंगी और मेरा नाम पुकार के बोलता है, तो मैं झट से उठ जाऊंगी. इतनी जोर से मैंने पकड़ रखा है. It permeates everything. This notion, this veil that I am this person, this permeates my entire life, my entire day-to-day activities. अब देखिए, अपने फिजिकल हार्ट में कोई गैप मिल जाए तो क्या करते हैं हम लोग? कोई बच्चा ऐसे डिफेक्टिव बॉर्न होता है कि देयर इज अ होल इन द हार्ट. सुना है कि नहीं? कितने बच्चे पैदा होते हैं जिनको कि इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है, तो उनको तो सर्जरी करनी पड़ती है. बट इन द स्काई ऑफ द हार्ट, when the void is full with the light of sun, वहां पर भी एक गैप है, एक स्पेस है. जो स्पेस इटर्नल है, जो मेरा कोर है, वो एक स्पेस ही है. वो स्पेस जब इस ज्ञान की लाइट से फुल हो जाती है, then the true awakening happens. In the pure mind, when subtle intellect comes together, then what is born? Pragya. प्रज्ञा का अब मतलब समझ में आया? हम लोग समझते थे एक फैकल्टी ऑफ द माइंड है, जैसे विवेक है, उसी को तो प्रज्ञा बोल देते हैं. नहीं, Pragya is that very subtle intelligence which makes us recognize that there is that space within me, which is my core, which is the source. तो फिजिकल स्पेस के लिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सर्जरी. फिजिकल होल अगर किसी के हाथ में होता है, लेकिन जिसने भी वो स्पेस को रियलाइज करा और उसको ज्ञान से भर लिया, कौन सा ज्ञान? वर्ल्डली ज्ञान नहीं, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आत्मबोध वाला ज्ञान. तब मैं अपनी फुलनेस को प्राप्त हो जाता हूँ. ये है प्रज्ञा. द इंट्यूटिव spiritual understanding which takes place in the presence of mind and knowledge. Mind के बिना वो नहीं हो सकता. इसलिए इस ह्यूमन बॉडी की जरूरत है छलांग लगाने के लिए. That leap that we require to take, which catapults me
from being an ordinary human being to being enlightened, bodhi. In the space of the heart, the sun of consciousness arises and dispels all illusion of a separate existence. तब समझ में आता है कि इसकी चोरी करके मैं कभी खुश नहीं हो सकता। सामने वाले के पास में बहुत धन दौलत है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, तो मैं उसकी चोरी कर लेता हूं। ये सब जैसे ध्यान आता है ना, जब हमारी चेतना जो है वो सोई हुई होती है, जब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, और तमोगुण जब रजोगुण के साथ कंबाइन करता है, तब सब नेगेटिव एक्टिविटीज करा देता है। रजोगुण जब सतो के साथ कंबाइन होता है, सतोगुण के साथ, और केवल अपने सत्य में एस्टैब्लिश हो जाता है, तब हमको आत्मज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब हम 68th वर्स को ले लेते हैं। दिग देश कालाद्यनपेक्ष, दिग देश कालाद्यनपेक्ष, सर्वगम सर्वगम शीतादि हृत नित्य सुखम, सुखम, निरंजनम, नित्य सुखम, निरंजनम, निरंजनम, वसत्वात्म तीर्थम, यस्वत्तात्मा तीर्थम भजते भजते विनिष्क्रियः, विनिष्क्रियः, स सर्वचित् सर्वगतो, स सर्ववित् सर्वगतो, अमृतो भवेत्। अमृतो भवेत्। हाँ, the one who renounces all activities. आगे पढ़ने के पहले I want to clarify renouncing का मतलब क्या होता है। It is not physical renouncing of the activities which are there in front of me. It is the कि माइंड से हमने उसको पकड़ के दिया, अंदर से हमने उसको छोड़ दिया, अंदर से हम उसके साथ चिपटे हुए नहीं है, मन से। इस संसार में कोई भी चीज दूसरे के साथ जुड़ी नहीं रह सकती, केवल ये जो मन है ना, यही चिपटता है ना। ये बॉडी देखिए, जो जिस बॉडी को मैंने अपना कितना अपना मान रखा है, ये तो हर रोज मेरे हाथ से फिसलती जा रही है। ये बॉडी एक सेकंड को भी आपको पकड़े हुए है क्या? कैसे ये बचपन से यूथ से होकर के मिडिल एज तक पहुंच करके वृद्धावस्था में आकर के ऐसे छूटती जा रही है, और मृत्यु इसकी जो 6th स्टेज है उसको भी ये कैसे पार कर जाएगी। कोई भी चीज हमको पकड़ती नहीं है, केवल माइंड, मन में एक क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज के साथ चिपट जाता है। अब देखिए, इस बॉडी के साथ भी कौन चिपटा हुआ है? मन चिपटा हुआ है। One who renounces all activities, who is free of all the limitations of direction, space and time. इसको मैं बहुत अच्छी तरह से खोलूंगी, क्योंकि हमको स्पेस को और टाइम को ट्रांसेंड करना है। मन के साथ साथ स्पेस और टाइम को भी ट्रांसेंड करना है, और ये माइंड का सटल इंटेलेक्ट कर सकता है, और इसको किए बगैर हम अपने आत्म तत्व में टिक नहीं सकते। इसलिए one who renounces all activities, one who is free of the limitations of
direction, space and time, who worships his own Atma, which is present everywhere, which is the destroyer of opposites like heat and cold, which is stainless and eternal bliss, becomes all-knowing and all-pervading, and therefore thereafter attains immortality. This is the end result of this text called Atmabodh, and this being the last verse, it contains 4 lines. All the other verses were always wound up within 2 lines, but here Shankaracharya has written 4 lines for this last verse. अब इसके हर एस्पेक्ट को हम लोग समझेंगे. Rising above the concepts of time and space, which are nothing but a figment of the mind. अब आप कहेंगे कि भैया टाइम और स्पेस तो इतनी जरूरी चीज है, ये फिगमेंट ऑफ द माइंड कैसे हो सकती है? अब मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे ये एक फिगमेंट ऑफ द माइंड है. देखिए, हमारे आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो कॉन्शियसनेस की स्टडीज कर रहे हैं, वो लोग भी इस गुत्थी में उलझे हुए हैं. यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कह देते हैं कि क्रिएशन होने के लिए टाइम और स्पेस आर अ गिवन. उन्होंने कहा कि टाइम और स्पेस के बिना क्रिएशन नहीं हो सकता, इसलिए क्रिएशन होने के पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज एन एलिमेंट कॉल्ड टाइम एंड एन एलिमेंट कॉल्ड स्पेस. समझे आप? अब मैं आपको अपने आप पर ले आती हूँ. नाउ, हियर एंड नाउ, in your present moment, I'm bringing you to your present moment. This present moment is the sum total of your entire past. जो कुछ भी आपने आज तक झेला है, आप उस सब के जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, उसका आप सम टोटल है कि नहीं इस प्रेजेंट मोमेंट में? बोलिए. यस. है ना? जो कुछ भी बचपन से अभी तक, या I'll take you to your past जन्म्स. पास्ट जन्म्स में भी जो कुछ भी आपने करा है, उसके आप सम टोटल हैं. यहाँ तक कि आपकी एक योनि सांप के जैसी थी, इसलिए आप आज भी कई बार सांप की तरह फुफकारते हैं. कई बार आप कुत्ते की तरह भौंकते हैं. देखा है कि नहीं आपने अपने आप को? और अपने आप को नहीं देखा है तो सामने वाले को तो देखा है कि देखो कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है. तो वी आर द सम टोटल ऑफ आवर एंटायर पास्ट 84 लाख योनियां. ठीक है? अब देखिए कैसे इस प्रेजेंट मोमेंट में वो 84 लाख योनियों का टाइम पीरियड सिमट के आ गया. देखा आपने? इस प्रेजेंट मोमेंट ने एंटायर पास्ट को अपने अंदर ले रखा है. कितना अचंभे की बात है. इज इट नॉट अ मिरेकल? कमला जी, मुझे ये चीज कभी भी समझ नहीं आई थी, आज समझ आई है. आ गई ना? हाँ, आ गई. ठीक है, बहुत अच्छा. अब आप देखिए, the future is contained in the imagination. है ना? जो कुछ भी आज आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मैं इतना बड़ा ये बना लूंगा, मैं अपना बिजनेस यहाँ तक ले जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से सेटल कर दूंगा. द फ्यूचर इज इन आवर इमेजिनेशन. एंड वेयर इज दैट इमेजिनेशन? दैट इज इन आवर माइंड और नॉट? In our mind. In our mind. This past and future has emerged from our mind and will dissolve in our mind. तो सारा पास्ट और फ्यूचर
मतलब टाइम has emerged from our mind. और जब आप इस माइंड को डिसरिगार्ड करना सीख लें, माइंड के चक्कर चल रहे हैं, मैं अपने आप में टिका रह सकता हूं। किसमें टिका रह सकते हैं? अपनी पीस और ट्रैंक्विलिटी में टिके रह सकते हैं, है ना? मैं in my अपनी true पीस, nature. हाँ, In my true nature. इन माई ट्रू नेचर, उसमें मैं टिका रह सकता हूं, मुझे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो मैं नहीं डिस्टर्ब हो सकता। ये मेरे अंदर चॉइस है। कैसे? जैसे कि हमारे इस जीवन में दो खूंटे हैं। एक है खूंटा जीव पने का, कि मैं ये जीव हूं। इस खूंटे में एक रबर बैंड पड़ा हुआ है, जीव पने में एक रबर बैंड मैंने लगा रखा है। अब कोई भी सिचुएशन आए तो ये रबर बैंड खिंचता है, खिंचता है, खिंचता है, और जब वो उस सिचुएशन से छूटता है तो वापस अपने जीव पने में आकर के टिक जाता है। कर सकते हैं ना हम ये, और यही करते आए हैं ना। और दूसरा खूंटा कौन सा है? मेरा आत्मा का खूंटा, जो कि वो ट्रैंक्विल स्पेस है जो हमने अपने वेदांतिक मेडिटेशंस में फील करा है। तो दूसरा खूंटा वो हो सकता है। अब वो खिंच रहा है, सिचुएशंस तो आती रहती है लाइफ में। सिचुएशंस ने कभी आना बंद किया है क्या? समुद्र में कभी लहरें उठनी बंद हुई है क्या? तो आएंगी। अब वो खिंच रहा है मेरा रबर बैंड, लेकिन जब वो उससे छूटता है तो किस में आकर के टिक जाता है? आत्मा में ही टिक जाता है। तो इस तरह से जब हमने अपने मन के फंदे से अपने आप को निकाल दिया तो वी हैव ट्रांसेंडेड आवर माइंड एंड thus वी हैव ट्रांसेंडेड टाइम। अभी हमने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि टाइम इज इन माय माइंड, क्योंकि सारा तो फ्यूचर जो मैंने प्लान करा है वो तो इमेजिनेशन में है, जो कि खाली माइंड है, और सारा पास्ट जो है वो इस मोमेंट में कलेक्ट हो गया है। आई एम द सम टोटल ऑफ माय एंटायर पास्ट। Vedant acknowledges that consciousness was there prior to creation. वेदांत क्या कहता है? ये हमारा धर्म, सनातन धर्म, यही एकमात्र फिलॉसफी है जिसने कि इस निष्कर्ष पर पहुंची है that there is a conscious field, there is a sentient field which is the substratum of the entire creation. इसके अंदर चित्त विवर्त हो रहा है, और चित्त विवर्त के बाद हम चिन्मय में आ जाते हैं, बिकॉज द एंटायर क्रिएशन इज परमिएटेड विद दैट चैतन्य तत्व। और फिर एनलाइटन मास्टर्स को दिखता है कि ये सब केवल चिन्ह मात्र है, केवल चैतन्य मात्र है। ठीक है? तो अब ये कहता है, देखिए, शीत और ठंड और गर्मी, हीट एंड कोल्ड, सुख दुख, मान अपमान, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट से ये ज्ञान हमको छुटकारा दिलवा देता है। और सब तरह की एक्टिविटीज अपने आप हो जाती हैं। गीता का वो श्लोक याद करिए कि गुण गुण में बरत रहे हैं। तो गुण आपस में ऑटोमेटिक हमारा एक्शन हो जाता है। ये बिल्ट इन मशीनरी ऐसी है, इसमें कितने इनवॉलंटरी फंक्शंस हो रहे हैं। इसी तरह से सिचुएशन के हिसाब से एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं उन एक्शन से छूटी पड़ी हूं, ये जानना है।
तो इस तरह से हम निष्क्रिय हो जाते हैं, मेरे अंदर कोई भी क्रिया नहीं, सिचुएशन करा लेती है। मैं ऑफिस में जाती हूँ, वो कुर्सी मुझसे काम करा लेती है, समझ गए आप? मैं घर में गृहिणी बनती हूँ तो घर की परिस्थिति मुझसे काम करा देती है। जिस दिन आपकी मेड नहीं आएगी तो आप ही झाड़ू पोछना बना करेंगे कि नहीं? यहाँ तक कि आपको कभी कभी इलेक्ट्रीशियन का भी काम करना पड़ता है, जैसी सिचुएशन होती है वैसा आप काम कर लेती है। महाराज नहीं है, कोई सेवाधारी नहीं है और घर में पार्टी है तो आप कितना ही खाना बना करके रख देंगे। तो सिचुएशन ने आपसे काम करा दिया। गुण गुण में वरत रहे हैं, आप हमेशा निष्क्रिय हैं, ठीक है? ऐसा जो मन है वो स्वयं उसका आत्मा ही तीर्थ हो जाता है, उसको कोई और तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। All external तीर्थ यात्रास आर ऑल्सो, हाँ अब देखिए एक बात है कि जो तीर्थ यात्रा हमको करनी है वो खाली एक करनी है कि टू इंक्वायर हु एम आई। फंदे में पड़े हुए हैं कि आई एम सच एंड सच, मैं तो एक बड़ी अच्छी औरत हूँ, कि मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ, मैं बड़ी अच्छी डांसर हूँ, मैं बड़ी अच्छी ये कर सकती हूँ, या मैं तो बहुत ही वीक हूँ, या मेरी तो सेहत बहुत खराब हो रही है। ये सारी आइडेंटिटीज, या मैं एक औरत हूँ, ये सारी आइडेंटिटीज मैंने ओढ़ रखी। क्या कहते हैं कि एक ही तीर्थ यात्रा करनी है, द इंक्वायरी हु आई एम। All the external तीर्थ यात्रास also take me to the same inquiry of who I am. जब हम तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो हम वैसे ही थोड़ा हमारा मन अंतर्मुखी तो हुआ रहता है और हम इसी क्वेश्चन में डाइव इन करते रहते हैं, और फिर जिस भी आंसर में पहुंचते हैं तो नेति 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 करके और हम कहते हैं कि ये तो मैं नहीं हूं, और फिर फाइनली उस अवस्था में पहुंच जाते हैं which cannot be dropped. That is one state, that is one stage of me which cannot be dropped, क्योंकि वो तो मेरा अपना आप है। That space which I have experienced. Become very alert at this point. Do not give in to any sensation of sleepiness. देखिए, पहले जमाने में तीर्थ यात्रा करते थे तो काफी डिफिकल्ट होता था, काफी अपने आप को तपस्या में रखना पड़ता था भैया, सिंपल खाना खाना पड़ता था, और कहीं कहीं पर भी जब पड़ाव होता था तो वहां पर कुछ अच्छे भगवान के वचन ही हमको सुनने में हमारे कानों में पड़ते थे। अभी क्या होता है, अभी सीधे हेलीकॉप्टर से हम लोग बद्रीनाथ के मंदिर के सामने में टपक पड़ते, 1 मिनट में गए अंदर दर्शन और वापस आ गए और हमने कह दिया ओ मेरा तो ये धाम पूरा हो गया। तो मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, कम से कम वो लेबोरियस यात्रा करते थे, सिंपल खाना खाते थे, इस भाव में रहते थे, तो कुछ कुछ असर होता था मेरे ऊपर। लेकिन अब तो मैं जाती हूँ, आई हॉप आउट ऑफ द हेलीकॉप्टर, आई हॉप इनटू द दिस थिंग, टेक द दर्शन मंदिर में जा करके, और फिर उसी हेलीकॉप्टर में बैठ करके 2 घंटे में वापस भी आ जाता। तो मेरे अंदर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। पहले की तीर्थ यात्रा और अभी की तीर्थ यात्रा में इतना फर्क हो गया कि अभी की तीर्थ यात्रा मेरे अंदर कुछ बदलाव लाती नहीं है। इसलिए बेहतर है कि मैं केवल सेल्फ इंक्वायरी कर करके अपने घर पर ही बैठा बैठा नेति नेति कर करके उस स्टेज तक पहुंच जाऊं जो कि फाइनली ड्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी अपनी रियलिटी है। अभी देखिए, ये तो मौसम भी यही है, जबकि लोग आषाढ़ी पूर्णिमा के लिए, फिर श्रावण के महीने में वो केवड़िया निकलते थे। आपको बता रही हूँ, वो केवड़िया क्या करते मालूम है,
अपने स्थान की जो नदी है उसमें से वो पानी लेते हैं और वो पूरी यात्रा में उस पानी को का एक दो कंधों के ऊपर वो डंडा लटकाते हैं, उसके अंदर वो पानी का एक कलश रखते हैं, वो ले जा करके तीर्थ में डालते हैं और वहां का पवित्र जल लेकर के आते हैं। इतनी बड़ी भावना है उसके पीछे कि जिस तरह से ये जल जो है उसके साथ मिल करके एक हो गया, वैसे ही ये जो इस मटके के अंदर का जो जीव बना है वो उस परम तत्व के साथ मिलकर एक हो जाए, है ना। तो ये जी जो भी एक्सटर्नल क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती थी अर्लियर डेज में तीर्थ यात्रा में, वो सब अब खत्म हो गई हैं और खाली हम अपनी ही कैप में एक और फेदर जोड़ लेते हैं कि हाँ मैंने ये भी कर लिया। So we become a bit worse than what we were before we started out for the yatra. अब तो फिर हम क्या, जब वर्ष हो जाते हैं तब हमारे फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं कि बाबा इससे तो अच्छा कि तुम तीर्थ यात्रा मत करो। लेकिन कभी कभी कोई सच्चा साधक भी होता है और जब हम लोग कहते हैं कि भाई अभी तुम ये सब बंद करो, सत्संग जाना भी बंद करो, यू आर बिकमिंग वर्स, तब क्या होता है कई बार कि सामने वाले को नजर नहीं आता है कि ये साधक कौन सी हालातों से गुजर रहा है, इसके अंदर से कौन सा मैल ऊपर आया है जिस वजह से which this person is trying to circumvent, लेकिन वो मैल ऊपर आ गया है तो उसके दबाव में आकर के इसका जो कॉन्डक्ट है वो थोड़ा सा खराब हो गया। तो ये ऐसा हुआ जैसे कि कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ है और हम उसको कह देंगे कि भाई तुम तो दवा लेना बंद करो, तुम्हारे को तो फायदा हो ही नहीं रहा है, तो उस दवा नहीं लेने से तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी ना। तो बेटर है कि वो कम से कम अपनी साधना के टेक्निक छोड़े नहीं, जब कहीं भी थोड़ा उथल पुथल हो रहा है तभी भी अपनी साधना को पकड़ करके रखे, एक न एक दिन उसके अंदर का आत्मा ब्लॉसम होकर के ही रहेगा। तो देखिए हमारी साधना में या तो हम कंटिन्यूअसली ये सीख कर सकते हैं कि हु एम आई, या हम ये अपने आप को दे सकते हैं कि वो जो ब्रह्म तत्व है वो मुझे किसी भी तरह से महसूस हो जाए, और या तो फिर मैं अपने इष्ट देव या गुरुदेव की याद में हमेशा रह सकती हूँ। इन तीनों साधनों से भी मैं उसी लक्ष्य तक पहुंच सकती हूँ। Finally, such a person will realize I am the all-pervading reality, और इसके अंदर फिर जो लिखा है कि वो अमृतो भवेत, attains immortality. So the result of Atmabodh is this immortality. I will now try to make you remember the first verse, which started with tapasya. The tapasya which a mumukshu does ends with this understanding of immortality, which is our true destiny. And over this whole period, we have met with all the challenges and we have circumvented the challenges and attained that state of complete Satchit Anand and the immortality which I continuously feel. This is the fulfillment which we have been seeking life after life. So with the grace of Gurudev, we have completed one more Shastra, Atmabodh, which hopefully has been rewarding for all of us. Amlaji, Yes. Amlaji, there is one question. हाँ बोलिए ना। Amlaji, you said ये तीन साधनों से also we can reach. So what are the तीन साधना? The three साधन, एक तो हाँ. सेल्फ इंक्वायरी हो गई
है ना? Yes. और एक ये खोज कि वो ब्रह्म तत्व क्या है, that also will lead us to the same thing. और अगर ये सब कुछ नहीं होता है, तब हम केवल इष्ट देव का या अपने ही गुरुदेव का उनकी ही याद में, उनके ही ध्यान में रहें, तब भी हमारा अल्टीमेटली कल्याण होगा. But the fastest method is this self-inquiry. You understand? We are not Thank you. disregarding or saying that all other methods are useless. We are saying ultimately they will take you there, maybe a little longer way. Maybe it will take us much longer, क्योंकि उस इष्ट देव को फिर हमको फाइनली तो उसी स्टेट पर आना पड़ेगा ना, कि वो इष्ट देव, वो ऑल परवेडिंग एसेंस क्या है, और फिर हम अपनी ही सेल्फ इंक्वायरी में आते हैं. समझ गए कि नहीं? Yes, yes, Amla ji. Thank you so much. Okay. Now I want to say that all of us who have been with Gurudev's sadhanas, we have all experienced that during this COVID period, we have not been as disturbed as many other people, जो कि suicidal हो जाते हैं, जो कि एकदम जब खुलता है लॉकडाउन, एकदम भागने का मतलब जिनका मन होता है कि अब हम घर से छूटे हैं, हम भागे, जैसे कि जेल से छूटे. लेकिन हम लोगों को जो कि गुरुदेव की साधना के पाथ पर लगे हुए थे, हमको ऐसे अंदर घुटन महसूस नहीं. ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है. एक ठहराव था मन में, एक ठहराव था मन में. हाँ. But this is not the end of our spiritual quest, na? There is more to the spiritual quest, and fortunately we have a taste of this in our Vedantic meditations. We have known the tranquility, the contentment, the wholeness that is ever available to us. अब फिर आइए अब हम उसमें डूबकर आत्मविभोर हो जाएं. Let us explore the inner realm of one's own being. उस शिव तत्व के प्रति पूर्ण आदर भाव के साथ यह मेडिटेशन हम जरूर शुरू कर रहे हैं. पर एक बात जानिए कि जो हम यहाँ डिस्कवर या अनकवर करने वाले हैं, ना उसका कोई बिगिनिंग है और ना उसका कोई एंड. जिस क्वेस्ट में हम हैं और जिसको हम ढूंढने वाले हैं, उसका कोई ना बिगिनिंग है और ना उसका कभी एंड है. एक बात और जानिए कि ये कोई फील गुड मोमेंट नहीं है. The realization of the self is not an event. We ourselves will verify that it is not just an event. अगर हमको अभी तक ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आज हो जाएगा. It is an unbroken experience or the background or the background of all experiences. ये लाइन लिख लीजिए. This tattva is an unbroken experience. लिखिए. This tattva is an unbroken experience, or it can be termed as the background of all experiences. जो कुछ मैंने आज तक एक्सपीरियंस करा है, यही उसका बैकग्राउंड है. मैं अपने ही बैकग्राउंड में उतर रही हूँ, जो मेरी रियलिटी है. एकदम कंफर्टेबल होकर के बैठ जाइए. बस एक बात याद रखिए कि अलर्ट रहना है. नींद आए तो भी ये जान लीजिए कि एक पासिंग फीलिंग है,
जिसे इग्नोर करना है और जिसका शिकार नहीं बनना है. In other words, what am I asking? Please do not go off to sleep. In pure and simple words, please do not go off to sleep. Please do not succumb to sleep. Because जो हम समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं वो आज तक कभी भी सोया नहीं है, तो हम सो करके उसको नहीं जान सकते. ये बात याद रख लीजिए. अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, गर्दन को भी सीधा कर लीजिए, है ना. पोस्चर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा और गर्दन सीधा. फिर अपने आप नींद आपके पास से भाग जाएगी. अब ये नींद आती क्यों है? क्योंकि हम इनवर्ड हुए हैं. आउटवर्ड से आंखों को फाड़ फाड़ करके सब चीज देखने की जगह हम इनवर्ड हो गए ना, तो इसलिए थोड़ा नींद आती है. लेकिन हमको सोने का नहीं है, इनवर्ड होते हैं. अब देखिए, इनवर्ड हुए हैं तो जगत को देखना बंद किया. जगत, जगत का मतलब क्या है? जो पैदा होते ही डिटीरियोरेट होकर के ड्विंडल होना शुरू हो जाता है. जिस समय से पैदा हुआ है अनुपमा जी, जिस समय से ये जगत पैदा हुआ है उसी समय ड्विंडल हो रहा है. उसी समय से, जिस समय से ये शरीर पैदा हुआ है, ये ड्विंडल होना शुरू हो गया है, क्षय होना शुरू हो गया है ना. जगत मतलब जन्मते ही जो बुलबुला खत्म होने की कगार पर आ जाता है, और चैतन्य वैसा है ही नहीं. उसका न शुरू है और न खत्म है. वो न अंदर है न बाहर है, क्योंकि वो अंदर और बाहर, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे सब कुछ सब जगह एक साथ में है. अभी 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 फिर से मन कहेगा, लेकिन नींद इज तो बड़ी रेस्टफुल, लेट मी स्लीप फॉर अ लिटिल व्हाइल. And to be overtaken by sleep is fine. But आपको मैं याद दिला दूं कि वो अवेयरनेस जिसको हम ढूंढने को चले हैं, वो आज तक कभी भी सोया नहीं है. और इसलिए हमको अपने आप को नींद से दूर रहना है. बस आपको क्या करना है, मेरे इशारों के साथ चलते चलिए. राइट और लेफ्ट मत जाइए. आपका ऊपर, आपके ऊपर और कोई भी मैं फिजिकल डिमांड नहीं रखने वाली हूं. अपने माइंड के प्रति जागरूक हो जाइए. आंख बंद है और माइंड में क्या चल रहा है उसके प्रति जागरूक. अब उसमें कोई भी भाव उठेगा तो उसे उठने के लिए जो स्पेस चाहिए वह आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाए. ये उठा, इस स्पेस में उठा. इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इट अपीयर्स इन अ फील्ड ऑफ अनब्रोकन अवेयरनेस. आपको कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, क्योंकि मैं जहां पॉइंट आउट कर रही हूं वो कंप्लीटली फॉर्मलेस है. मान लीजिए मैं हूं का एक एहसास आ गया. मैं हूं, अवेयरनेस को मालूम पड़ जाएगा कि इस मैं हूं में एक पर्सन का कॉनोटेशन है, क्या ये मैं हूं वो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस का एहसास लेकर के आया. The sense of oneself is also apparent. देखिए, जब आप एक पर्सन की तरह से मैं हूं बोलते हैं तो उसमें चेंजेबलनेस रहती है, चेंजिंग वो रहता है उसका एहसास. उसमें
हम ऐसा या वैसा सोचते हैं या फील करते हैं, मेमोरी आ जाती है, सेल्फ इमेज आते जाते रहते हैं। ये किसके ऊपर आ रहे हैं? ये जो थॉट्स हैं, ये किसके ऊपर आ रहे हैं? हमारी नजर उसके ऊपर है। They are coming on a field of consciousness which never changes, and that is why we become immediately aware of it. Example से समझाती हूँ। आप हमेशा naturally aware है। ये meditations शुरू किए उसके पहले भी आप aware थे शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप aware हैं ही हैं। You are always aware of your body. You are aware at present of your body, of where you are sitting. All these are sensations appearing in a very still field. Let us give it the name of the awareness field. जब यह सेशन शुरू हुआ तब आप इस अवेयरनेस फील्ड के प्रति अवेयर हो गए। अवेयरनेस को दाएं बाएं मूव भी नहीं करना पड़ा। ऊपर नीचे अंदर बाहर अवेयरनेस में ये सब है ही नहीं। इस तरह वह दिशा और काल से अति परे है, क्योंकि वह सारे में समान रूप से फैली पड़ी है। जो कुछ भी मन में आता जाता है वह इमीडिएटली हमको मालूम पड़ जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? सपोज मैं गिनती गिनना शुरू करूं, 1 2 3 100 1000 लाख करोड़, यह सब अवेयरनेस में रजिस्टर होता जाएगा और इस सब के बीच वह अवेयरनेस जस की तस रहती है। आप इन नंबर्स को बदल दीजिए। आप एंशिएंट टाइम से करंट अफेयर्स तक अपनी अटेंशन को ले जाइए, पर वह अवेयरनेस हमेशा अडिग रहेगी। चलेगा क्या? आपका मन, आपके थॉट्स चलेंगे, आपकी अवेयरनेस में जो कि स्टिल है, अडिग है, अचल है, ये सब रजिस्टर होता रहेगा। अगर वो इस तरह से ऑल परवेडिंग, स्टिल, अचल, अडिग नहीं होती, तब आपके अंदर के आते जाते थॉट्स कितने ही रजिस्टर नहीं हो पाते, लेकिन वो सब रजिस्टर हो रहे हैं। ये धरती से लेकर अंतरिक्ष, मिल्की वे, स्टार्स, प्लैनेट्स, सब के बारे में आप इधर से उधर अपना माइंड ले जाइए, अवेयरनेस उनको इल्यूमिन करती ही रहेगी और तत्क्षण वह अवेयरनेस सब कुछ हजम कर लेगी। सच इज द नेचर ऑफ ट्रूथ। उसको जानने के लिए तुमको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा खुद का एहसास इसको वेरीफाई करता है। वह स्वतः सिद्ध है।
तुम्हें रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है कि इस रियलिटी की क्या सच्चाई है, वो तुमको स्वतः सिद्ध हो जाएगा. This is the marvelousness of your own consciousness, जिसको तुम I कहकर बोलते हो. This I indicates my own existence. On this existence arises what we call the waking stage. पहले एक I am आता है, उसके बाद waking stage. रोज सवेरे जब आप उठते हैं तो आपकी waking stage होती है, where we can be aware of the awareness. आपकी waking stage में ही आपको अपनी awareness का एहसास होगा. When consciousness appears, then either simultaneously or just after comes the existence of our own reality. It is contained in the fact that consciousness is the sentience which gives life to everything that we have believed ourselves to be. My personal self, the one who was experiencing life that comes in front of us. Notice, you have not moved. You have not done anything special, but you are able to perceive all of this. Even the act of perceiving takes place in that which is beyond the faculty of perceiving. All that what I'm sharing, that this knowledge, this way of analyzing, you can verify by your own knowing. Anything that appears must appear subsequent to your own presence. आप नहीं होते यहाँ पर तो आपको ये कोई भी एहसास नहीं होता ना. तो आपकी presence is the foremost requirement. All this knowing must appear in the conscious field and is seen to be moving, coming and going and arising and falling. This knowing, जो कुछ भी चल रहा है, वो आता है, जाता है. But that where this deep perception is happening, that substratum is not moving. You are here and you are that. The witness of your whole life, your history, your dreams and aspirations, which are moving, but the witness within you is not moving. The scene of your personal identity, the sense of your personal identity is also appearing in front of that Sakshi, which is not personal. There is no doubt in it because it is already so. You are here. It is this unmoving here-ness which is your reality.
your Atma, yourself. It is the beginning and the end of all creation, and you, the person, is an infinitesimal part of this. Of what? Of you, who is the substratum of this entire creation. Thus, you are immortal, which is the message of Atma. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम्
सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टतरेत्रविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परमपदं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा। मुझे लगा कि ये फिटिंग कंक्लूजन होगा, क्योंकि इसने हमको पहाड़ों की ऊंचाइयों पर और उस सुनहरे जो सूर्य की किरणों का दर्शन होता है उन पहाड़ों पर, वहां तक हमारी चेतना को पहुंचा दिया। और शब्द तो है ही अनुपम। So I take your leave.